Hello, my dear students. Today we will start our discussion of the chapter Current Electricity in your 12th standard syllabus. Now, the basics you have already studied. You know that current is caused due to the flow of charges. So, whenever charges are in motion, they constitute current. And you have also studied some basic laws like Ohm's law, which states that the potential difference across any resistance is directly proportional to the current flowing through it, or current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, where you have seen that V is equal to R into I, okay, where the constant of proportionality R is called as resistance. Okay, this is a constant and this R is the ratio of V and I. So by this is one relation that gives you how to find out voltage when the current is known, or how to find out current when the voltage or potential difference is known through a resistor. But this relation is not enough for us for solving complex circuits. Solving means what? Solving a circuit means determining what is the current flowing through different arms, different branches of it, and what is the potential difference across different elements in the circuit. So this is called as solving a circuit. सर्किट को सॉल्व करना मतलब उसमें से डिफरेंट रेजिस्टर्स जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उनके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये डिटरमाइन करना मतलब सर्किट सॉल्व करना. सो सिर्फ ओम्स लॉ से हम लोग पूरा सर्किट इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट होगा. इसके लिए एक लॉ दिया हुआ है, दैट लॉ वी विल स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉ. Kirchhoff's laws. Okay, there are two laws. The two laws are Kirchhoff's junction law this is also called as Kirchhoff's current law. And there is another law that is called as Kirchhoff's loop law. Okay, this is also called as Kirchhoff's voltage law. Now, before we go into the first law, that is Kirchhoff's junction law, let us understand a few things. What is a junction? See, junction is a point where two or more than two conductors meet. Okay, so if for example this is a part of the circuit, then this point is called as junction. So junction is a point where two or more conductors meet. And what is a loop? Because that is also there in the second law. So loop is what? Loop is a part, a closed conducting part in a circuit. Okay, so ये अगर circuit है, suppose, just to give a rough idea, so ये एक part कैसा है? This is a closed part, closed conducting part. So ये क्या हो गया हमारा? एक loop हो गया. या फिर this one, this is also a loop. Okay, this is a closed conducting part. This is called as loop. Branch क्या है? See, दो जंक्शंस के बीच में, दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन, दो जंक्शंस के बीच का जो पार्ट है सर्किट का, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच ऑफ द सर्किट. क्लियर? सो ये तीन बेसिक कंसेप्ट्स लगेंगे व्हेनेवर यू विल बी डीलिंग विथ दिस टू लॉज. अब किरचॉफ्स जंक्शन लॉ स्टडी करते हैं. व्हाट इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ सेज that in a circuit, in an electric circuit, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero. Okay, Kirchhoff junction law क्या बोलता है कि कहीं भी सर्किट में कोई भी जंक्शन जो भी रहेगा,
इसमें मिलने वाले सारे करंट्स का अगर अलजेब्रिक सम हम लोग करेंगे, so that will always be equal to what? 0. So just note it down. The algebraic sum of all the currents meeting at a junction is 0. ओके, इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ i's where I varies from 1 to n is equal to 0. Okay, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो you will have to write this statement and then you will have to write this expression. इसका मतलब क्या है कि जितना भी करंट किसी जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट वहां से बाहर भी चला जाएगा. ओके, मतलब चार्जेस वहां पे एक्यूमुलेट होके नहीं रहेंगे. जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट को बाहर जाना होगा. सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ओके, सो ये भी एक चीज याद रखेंगे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करस्पॉन्ड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. मतलब जितना चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा या क्रिएट नहीं कर पाएंगे. ओके, जितना आएगा उतना जाना ही होगा. नो चार्ज एक्यूमुलेट्स हियर. इसका मतलब क्या है? देखिए, चार्ज इसमें करंट एंटरिंग दिस जंक्शन आर व्हाट? I1 अंदर की तरफ आ रहा है, I2 अंदर की तरफ आ रहा है. तो इन दोनों का अगर सम करेंगे, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू I3 बिकॉज दैट इज द करंट लीविंग द जंक्शन. इसी को अगर हम लोग जो हमने स्टेटमेंट लिखा है अलजेब्रिक सम, उसमें लिखेंगे I1 plus I2 minus I3 is equal to 0. So algebraic sum of all the currents meeting at a junction is equal to 0. Okay, इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हम लोग फॉलो करेंगे. What are the sign conventions? Current entering a junction is taken as positive. So current entering a junction is taken as positive. Clear? और दूसरा, करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. ओके, तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे. जो करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है वी विल टेक इट एज नेगेटिव. ओके, सो ये साइन कन्वेंशंस का यूज करके वी विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट सर्किट्स. सो दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. दोनों लॉज देख के फिर वी विल सी 1 or 2 प्रॉब्लम्स. सो इसमें कुछ आइडियाज क्लियर हो जाएगी काफी हद तक. Now this Kirchhoff's second law is what? This is Kirchhoff's loop law. अब Kirchhoff's loop law क्या बोलता है कि अगर कोई भी क्लोज सर्किट हम लोग लेंगे, say suppose this is resistance R1, this is resistance R2, okay, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2. सो ये अंदर आ जाएंगे, I1 यहाँ, I2 यहाँ, तो यहाँ पे जाने वाला जो करंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2. ओके, ये करंट इधर से फ्लो होगा, यहाँ I1 प्लस I2 होगा, इसमें से I1 इधर चला जाएगा और I2 इधर चला जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसको पॉइंट्स को नाम देते हैं A, B, C, D, E and F. Now Kirchhoff's loop law क्या बोलता है कि the algebraic sum of all the potential differences and EMFs in a closed loop is always equal to 0. Okay, Kirchhoff's loop law क्या बोलता है कि जो भी potential differences है, potential difference is what? The product of current and resistance. किसी भी लूप में हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंसेस जितने भी हैं उनका, और ईएमएफ इज व्हाट, ईएमएफ करस्पॉन्ड्स टू द बैटरी. ओके, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन एन ओपन सर्किट. सो ये इसका ईएमएफ होगा. नाउ सपोज इसका ईएमएफ है E1. क्लियर. तो इन दोनों का अगर सम लेंगे हम लोग, कहा, एक क्लोज लूप में. क्लोज लूप मतलब क्या है, यहां से अगर स्टार्ट करें तो ये क्लोज लूप हो गया, या फिर यहां से स्टार्ट करें ये क्लोज लूप हो गया, या फिर यहां से ये भी एक क्लोज लूप हो गया. सो किसी भी क्लोज लूप में, इन अ क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the algebraic sum of potential differences and EMFs is 0. ओके, इसी को मैथमेटिकली कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस sum of all the EMFs. This will be equal to 0. Okay. अब सेम कुछ कन्वेंशंस फाइंड हम लोग फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशंस. Now what are these sign conventions? साइन कन्वेंशंस क्या है कि किसी भी लूप में when you move through a resistor in the direction of current, अगर सब, अब लूप तो हम लोग कैसे भी ट्रेस कर सकते हैं, अपना डायरेक्शन हमारी मर्जी है, जो भी डायरेक्शन में ट्रेस करें. अब हम लोग सपोज ऐसे ट्रेस करते हैं, सपोज A to F, F to C, C to B and B to A. अब यहां से देखिए, यहां तो कोई रेजिस्टर नहीं है. अब इधर देखिए, इसमें से हम लोग कैसे जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, हम लोग लूप इधर ट्रेस कर रहे हैं. सो वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. जबकि यहां देखिए, यहां पे करंट और हम लोग जो लूप ट्रेस कर रहे हैं उनका डायरेक्शन सेम है. तो इस केस में इफ वी मूव थ्रू अ रेजिस्टर in the direction of conventional current, then potential difference is taken as negative. पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे. इस केस में हम लोग यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज I2 into R2, लेकिन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन. ओके, इस केस में वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, इस केस में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इधर I1 R1 है पोटेंशियल डिफरेंस, I1 R1, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको क्या लेंगे, माइनस I1 R1. क्लियर. चलो, सेकेंड कन्वेंशन इज व्हाट, if we move through a resistor in the direction opposite to that of conventional current. Okay, if we move through a resistor in a direction which is opposite to the direction of conventional current, then the potential difference is taken as positive. Clear. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, we are moving against the direction of conventional current. So therefore ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I2 R2. Okay, but we are moving against, so we will take it as positive. Clear. So if we move through a resistor in the direction of conventional current, then the potential difference is taken as negative. If we move through a resistor against the direction of conventional current, the potential difference is taken as positive. Clear. So these are two. Then the third one is, third one is, if we move through a cell या battery from negative terminal to the positive terminal, then
EMF electromotive force is taken as positive. ओके अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के सपोज ऐसा लूप ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो हियर द EMF विल बी टेकन एज पॉजिटिव. बट इफ वी ट्रेस द पाथ थ्रू अ लूप या फिर इफ वी मूव थ्रू अ सेल इन अ लूप अगेंस्ट थ्रू अ लूप फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा अगर आएंगे, देन दैट EMF ऑफ दैट सेल इज टेकन एज नेगेटिव. क्लियर? ये 4 साइन कन्वेंशंस हम लोग याद रखेंगे. सो अगर हम लोग बैटरी से मूव करते समय नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करते तो पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे तो इसको नेगेटिव लेंगे. याद रहे कि लूप कैसे डायरेक्शन में ट्रेस करना है ये हमारा अपना चॉइस है. वी हैव टू डिसाइड कि कैसा ट्रेस करें. अकॉर्डिंगली जो भी साइन कन्वेंशन है वो हम लोग अप्लाई करेंगे. चलो फॉर एग्जांपल हम लोग अब जो सर्किट बनाया है हम लोगों ने इसको अप्लाई करते हैं. क्लियर? अब देखो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं जंक्शन F को, तो देखिए F में सी करंट I1 इज कमिंग एंड करंट I2 इज कमिंग. क्लियर? सो इसको अगर हम लोग I3 बोलते हैं तो I1 प्लस I2 वुड हैव बीन इक्वल टू I3. इसको अगर हम लोग I3 बोलते तो ओके, बट दिस I3 इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट I1 प्लस I2. क्लियर? नाउ अगर किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे टू अ लूप, अप्लाइंग Kirchhoff's loop law to the loop A B C F A. देखिए ऐसे. क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, या तो फिर एक काम करते हैं, बैटरी भी आनी चाहिए लूप में, इसलिए क्या करते हैं टू द लूप A B C D E F A इस जंक्शन को अप्लाई करेंगे. सी हियर, यहां से यहां, यहां से ऐसा. देखिए अब A टू B हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ रेजिस्टर है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? I1 into R1, बट वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट. सी करंट तो इधर है, हम ऐसे जा रहे हैं. सो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव. देन यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ है नहीं. यहां से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं. ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव लेते हैं. नेगेटिव E1 इसका EMF. फिर यहां जाएंगे, यहां तो कुछ है नहीं. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0. क्लियर? अगर हम लोग लूप लॉ अप्लाई करेंगे टू दिस लूप FCDE, FCDE, या फिर अब इधर से करो FEDCF. इस लूप को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो FE, इधर तो कोई रेजिस्टर है नहीं, इधर से देखो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेंगे अभी E1. देन हियर वी आर ट्रैवर्सिंग आवर पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे. I2 into R2. This must be equal to 0. The sum of the potential differences and EMFs through a circuit is always equal to 0. अब इसमें अगर कोई unknown है, current है या फिर EMFs है, that can be determined by solving the equation simultaneously. Clear? So now we will discuss the problems so that you can understand how to apply these principles. We are given that there are two cells, one of 7 volt and internal resistance 1 ohm. Okay, and another cell of 13 volts EMF and internal resistance 2 ohm. They are connected in parallel to a resistor of resistance 12 ohm. Okay, 12 ohm का resistor है, इसके अक्रॉस पैरेलली ये दो सेल्स कनेक्ट किए हैं
इसका ईएमएफ 7 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 13 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वी नेम दिस पॉइंट्स लाइक दिस ए बी सी डी से ई एफ। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू लॉज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अभी क्या करेंगे हम लोग, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों को करंट दिया हुआ नहीं, हमको सिर्फ इतना दिया है कि भाई ये पैरेलल है, तो इसको हमने ऐसा सर्किट ड्रॉ कर लिया। यहाँ से सपोज ये बैटरी होने के कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, हमने सपोज ये डायरेक्शन पकड़ी। यू कैन वेरी वेल चूज दिस डायरेक्शन ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली I2 का ये डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है, यू कैन वेरी वेल अज्यूम दिस डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 यहां से फ्लो हो रहा है, I2 यहां से फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इस जंक्शन पे देखिए I1 और I2 आ रहा है, तो इधर से ये दोनों जाना ही पड़ेगा। इसलिए यहां से इस आर्म से फ्लो होने वाले करंट को हमने I1 प्लस I2 किया है। I3 नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि दिस इज I1 प्लस I2 विल बी गोइंग आउट। फिर ये सेम करंट इधर से चला जाएगा, वापस I1 इधर चला जाएगा और I2 इस तरफ चला जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, लेट अस अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ। कौन से लूप को अप्लाई करेंगे, तो लेट अस अप्लाई दिस टू दिस लूप। से अप्लाइंग loop law to A, B, D, E, F, C, A। ओके, ये लूप को अप्लाई करेंगे। देखिए क्लियर? चलो अप्लाई करते हैं। A टू B की तरफ जाएंगे तो देखिए हम लोग वी आर मूविंग थ्रू द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम लोग नेगेटिव लेंगे -7 वोल्ट। ओके, अब यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस के से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। सो हम लोग इसको क्या लेंगे, प्लस करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज 1, सो 1 into I1 दैट इज इक्वल टू I1। यहां से चले आएंगे तो देखिए वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, against the direction of current. What is the current? Current is I1 plus I2, I1 plus I2. And what is the resistance? Resistance is 12. So this we will have to take as positive. Kyun? Because we are moving against the direction of current. So these are the sum of this will be equal to 0. Now we will take another loop, applying the loop law, applying the loop law to another loop। कौन सा लूप लेंगे अभी हम लोग, हमने ये बड़ा वाला लिया था, अब ये छोटा वाला लेंगे C D E F C, C D E F C। अब यहां से C से D की तरफ जाएंगे जब हम लोग, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल वी आर मूविंग, सो वी विल टेक इट एज नेगेटिव। ओके, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने देखा था। एंड देन दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ओके, and what is the current? Current is I2, but we are moving against the direction of current, so we will have to take it as positive. So plus 2 into I2 is the potential difference. फिर यहाँ से मूव करेंगे, we are again moving against the direction of current. Okay, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम लोग ऐसा ट्रेस करते तो that is also fair, but हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, current is I1 plus I2. Okay, and we are moving against the direction of current, so again we will have to take it as positive 12 I1 plus I2. Okay, the sum must be equal to 0. अभी क्या करेंगे, ये दोनों हम लोगों को इक्वेशंस मिल गए हैं, इन दोनों को we will solve। अभी इसको क्या करते हैं, this gives us what from equation number 1, what this is say equation number 1 and this is equation number 2. So from 1 what we get, see from 1 what we get is, see I1 plus 12 I1 plus 12 I2, okay, 12 I1 plus 12 I2 is equal to, इसको इस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, +7। So therefore I1 plus 12 I1 is 13 I1 plus 12 I2 is equal to 7. This is the first equation. Similarly from 2 what we get from equation number 2, what we get is 2I2
प्लस 12i1 प्लस 12i2, ओके, इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाइए अपोजिट राइट हैंड साइड में, सो देयरफॉर 12i1 प्लस 2 plus 12 is 14i2 is equal to 13. This is the another equation that we got. Okay, so 13i1 plus 12i2 is equal to 7. Now what we do is, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो 12i1, ओके, सो what we can do is, चलो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. व्हाट आर द टू इक्वेशंस? 13i1 प्लस 12i2 is equal to 7 and this one is 12i1 plus 14i2 is equal to 13. अब what we can do is multiply this equation by 12 and this by 13. Okay, पहले i1 plus i2 आया था तो we could have subtracted also, उससे भी हम लोगों को मिल जाता था, लेकिन ये सिंपल है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं वो मेथड है, इसलिए we will keep on doing like this. So 12 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 are 36, 12 156 i1 प्लस 144 i2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 84, 12 into 7. सिमिलरली 13 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, so 156 i1 प्लस 13 into 14 is 130 plus 52, that is 182. Clear? 182 i2 is equal to 13, 13 is 169. Okay, now what we will do is we will subtract equation number 1 from equation number 2. Clear? So therefore या तो फिर इसको 1 2 पहले उधर नाम दिया था, तो अब इसको चलो 3 और 4 कर दो. So 4 minus 3 क्या हो जाएगा हमको? दिस माइनस दिस इज 0, i1 कैंसिल हो जाएगा. 182 minus 144, so this will be equal to what? This is equal to 38. Okay, this is equal to 38 i2, this is equal to this minus this, 9 minus 4 is 5, and then 16 minus 8 is 8. So therefore i2 is equal to 85 by 38 amperes. Clear? So we have got the value of i2. Now put this value of i2 and you will get the value of i1. Okay, किसी भी जो भी equations हमारे पास available हैं उनमें से किसी में भी we will put this value. So therefore see 13i1 plus 12 times of i2, that is 85 by 38, this is equal to 7. So therefore 13i1 is equal to, and I will try to simplify this, 2 6s are 2 19s are, okay, then 6 5 are 30, 6 8 are 48 plus is 51 upon 19 is equal to 7. So therefore 13i1 is equal to 7 minus 510 upon 19. So this is equal to, say, 19 in the denominator, okay. So इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, i2 हम लोग यहाँ लिख के रखते हैं, i2 is equal to 85 by 38 amperes. i1 के लिए हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, so therefore 13i1 is equal to, see 19 is the denominator, अभी 19 sevens are 133 minus 510. Okay, so this will be equal to 377 by 19, but minus, therefore i1 is equal to
minus 377 by 19, okay, into 13. Clear? This is 13 times of I1, no? So I1 is equal to this. So this will be equal to minus 377 upon 19 into 13. Can we divide this? 377 upon 90 into, okay, minus 377 90 into 13. Okay, we will have to solve it. Okay, this is equal to minus 377 upon 244. So we will have to find out the values in decimal. So क्या हो जाएगा? See, therefore I1 is equal to, अब ये क्या 377 को डिवाइड करो 247 से. So this is 247. ओके, नेगेटिव साइन है. रिमेंबर, नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली करंट फ्लो होगा. सो दिस इज 031 पॉइंट देंगे 1300. सो 5 okay 1.5 then again 2. Okay, so minus 1.52 amperes is the current I1 and I2 is equal to, इसको भी ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे. So 85 by 38. So 38 to the 76, 9 point to the 76, 14, 3, 2.23. So I1 is equal to minus 1.52 amperes. I2 is equal to 2.23 amperes. Clear? So what is the value of I1 and I2 now? I1 plus I2 is equal to, therefore current through 12 ohm resistor is equal to I1 plus I2, but I1 कितना वैल्यू है? minus 1.52 plus I2 is what? 2.23. Okay, so this will be equal to 0.71 ampere. So 0.71 ampere is the current that is flowing through this. And what is the potential difference then? Therefore, potential difference is equal to current, that is 0.71 multiplied by resistance, that is 12. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, (8.52 volts). So this is the potential difference across this. Clear? So Kirchhoff's के laws apply करके what we get is, we get simultaneous equations in the form of the variables that we have assumed, and then we will have to solve them to get their values. Clear? So ये हो गया एक problem. चलो, next problem is, a circuit is given like this. Okay, ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेल है, ये सेल का EMF 5 वोल्ट्स दिया हुआ है, दिस इज E1,
this is 5 volts, and this is E2, that is 12 volts, and it is given that the current I3 flows like this, current I2 is flowing through like this, like in this direction, and then this is I1. Clear? अब इसको what we have to find out is that their internal resistances are negligible, this one and this one. So हमको ये different values of I1, I2, I3 determine करने हैं. Clear? अब क्या करेंगे हम लोग? We will apply the loop laws and junction laws to different parts. अब से देखिए, let us apply Kirchhoff's law, loop law to FCDEF. इसको अप्लाई करेंगे. सो क्या आएगा? इस डायरेक्शन में चलेंगे. I2 का डायरेक्शन अपोजिट है, सो इसको पॉजिटिव लेंगे. 3 into I2, दिस वन. यहां से देखिए, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये I1 है ना, सो दिस इज -4 I1. यहां से जाएंगे तो -2 पॉजिटिव, तो प्लस लेंगे, प्लस 10 वोल्ट. दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर? सो देयरफॉर ये दोनों को उस तरफ लेके चलेंगे. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 4I1 minus 3I2 is equal to 10. Okay, this we have taken to this side. This is plus, this is minus, and 10 को इधर ही रखेंगे. This is our first equation. Then let us apply let us apply Kirchhoff's law to the loop. कौन से लूप को अप्लाई करेंगे? ABCFA, सपोज ABCFA. ओके, इधर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस लेंगे हम लोग. देन हियर देयर इज नो एलिमेंट. यहाँ से I2, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो नेगेटिव लेना होगा. -3I2. ओके, फिर अगेन ये I3 है, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो -4 into I3, this is equal to 0. So therefore 3 times of I2 plus 4 times of I3, ये दोनों इस तरफ लेके गए, this is equal to 5. So this is second equation that we have got. अब हम लोग I1, I2 and then I2, I3, 3 इक्वेशंस रहेंगे, 3 वेरिएबल्स रहेंगे, तो 3 इक्वेशंस हम लोगों को लगेंगे. Now we have applied to this loop and this loop. Now let us apply कौन कौन सा? FCDEF, इसको अप्लाई किया, and then ABCFA, इसको अप्लाई किया. अब ये बड़ा लूप को अप्लाई करते हैं. क्लियर? टू दिस लूप ABCDEFA. ओके, इधर क्या होगा? You are moving in the direction from negative to positive, so प्लस लेंगे. Then in the direction of current, -4I1. Okay, then negative to positive, मतलब +10. Then you are moving in the direction of current, so -4I3. This is equal to 0. So therefore इसको इस तरफ लेके जाइए. 4I1 plus 4I3 is equal to 5 plus 10, that is 15. So these are the 3 equations that we have got. यहाँ पे I1 I2 है, यहाँ I2 I3 है, यहाँ I1 I3. Okay, from 1 what we get? From 1 4I1 is equal to, इसको इस तरफ लेके जाइए, 3I2 plus 10. Okay, so now okay, this is I3, this is I2, and this is I1. Okay, I3. Okay, from here also we can simplify this. We can apply Kirchhoff's junction law to any of the junctions. Say we apply Kirchhoff's junction law to junction C. So what will happen? Applying
junction law to C. ओके यहाँ पे देखिए ये I3 है अंदर आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है और I1 बाहर जा रहा है. सो देयरफॉर इनकमिंग करंट कौन सा है यहाँ पे I3. दिस मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. आउटगोइंग करंट्स कौन कौन से हैं? I1 प्लस I2. क्लियर. सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मिल गया है. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देयरफॉर 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. 4 times of I1 plus 4 times of I3 is what? I1 plus I2. This is equal to 15. Okay. So therefore 4 times of I1 plus ये 4 times of I1 मतलब 8 times of I1 plus 4 times of I2 is equal to 15. This is the another equation that we get. Clear? So now I1 और I2 के फॉर्म में हम लोगों के पास इक्वेशन है. दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 एंड देन फ्रॉम दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I3. क्लियर. सो अभी क्या करेंगे? वी विल यूज दिस टू इक्वेशंस. ये क्या है? 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 15. क्लियर. अब इसको क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, इसको लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2. सो क्या हो जाएगा? 8I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 20. क्लियर. अब इसमें से यू सब्ट्रैक्ट. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अभी क्या करते हैं हम लोग? वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. ओके. सो 4 माइनस 5 व्हाट वी गेट? 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा. ओके. 4 माइनस ऑफ माइनस 6 दैट इज प्लस 6 दैट इज 10I2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस दैट इज माइनस 5. Okay, so therefore I2 is equal to minus 5 by 10, that is equal to minus 0.5 amperes. Clear? So I2 का वैल्यू मिल गया. I2 का जो वैल्यू हमको दिया हुआ था, जो डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है माइनस 0.5. अब I2 का ये वैल्यू यूज करके वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ I1. ओके. सो देयरफॉर इसमें रखते हैं वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू plus 4 times of I2 that is minus 0.5 is equal to 15. So therefore 8I1 minus this is 2 is equal to 15. So therefore I1 is equal to 15 plus 2 that is 17 upon 8. Clear? So इससे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 2.12 एम्पेयर्स. ओके. सो I1 मिल गया हमको, I2 मिल गया हमको. नाउ I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये दोनों का सम करेंगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I3 ऑल्सो. क्लियर. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. I hope you have understood Kirchhoff's laws and its application. Keep watching to understand all the topics related to current electricity. Thank you very much.